Good afternoon, everyone. Let's quickly continue with PGBP revision and try and finish that so that I can start with a new chapter of capital gains today. Now, there was one homework question that I had given you, was Isaac Limited. That was your homework, so I'll quickly do that. So, NP is given. The net profit, my presentation may not be that good, but it's just a homework question, so I'm checking it right. Yeah, so how much is the NP? NP is 15,25,890. Right. After that, purchase of raw material used for purchase of in-house. This is the homework question that I'm checking. This is Isaac Limited ka question. 16th in the notes. Purchase of raw material used for purchase of in-house research and development. कितना raw material आपने in-house research के लिए purchase किया? 1,80,000. And how much is no in-house research 200%. No, in-house is how much? 150%. Yes. So either add and we'll have less. So raw material for in-house research. How much is allowable? 150% of 180. So that comes to how much? 2,70,000. 270 is allowable under section 35. है ना? लेकिन how much it has accountant debited? 180. So you have to debit additional 90,000. तो debit करना मतलब profit से less करना. तो यहाँ पे होगा less 90,000. This is under section of course 35. Purchase price of an asset for in-house research and development wrongly debited to profit and loss account. एक है land. So land has been wrongly debited. Is it correct that it is wrongly debited? नहीं करना, it's wrongly. So is it wrongly debited? Yes, it is wrongly debited, so it should not be debited. So if it is not to be debited, so you will have to add it back. Cost of land is never going to be allowable. So 1, cost of land, not allowable, 5 lakhs. ऊपर नीचे हो गए क्या अमाउंट्स? बाद में बिल्डिंग का क्या कॉस्ट है? 3 lakhs. बिल्डिंग इज गोइंग टू बी अलावेबल. यस. हाउ मच इज अलावेबल? 100%. तो कितना डेबिटेड है? 100%. तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितना अलावेबल है उतना ही डेबिटेड है. तो अकाउंटेंट ने जो भी किया वो सही किया. बराबर. एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन नोटिफाइड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट. नाउ नोटिफाइड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे कितना अलावेबल होता है? 150%. डेबिटेड कितना है? 1,50,000. तो इसका अलावेबल होने वाला है. ये सेक्शन याद आ रहा है क्या किसी को? 35 CCD. हाँ, एग्जैक्ट 35 CC ट्रिपल सी, सॉरी 35 ट्रिपल सी एग्रीकल्चरल एंड CCD is skill development. Okay, so allowable expenditure for agri extension project. जरा मुझे बताना, 150% ऑफ 1,50,000 225. अकाउंटेंट तुमने कितना डेबिट किया है? दिस इज 35 ट्रिपल सी. तुमने 150 डेबिट किया और कितना डेबिट करना चाहिए था? 75. तो डेबिट करना है मतलब प्रॉफिट से लेस करना है, तो लेस 75,000. एक्सपेंडिचर ऑन नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट. अगेन परचेज ऑफ लैंड, कुछ भी हो जाए, परचेज ऑफ लैंड इज नॉट गोइंग टू बी अलावेबल. परचेज ऑफ लैंड कभी भी अलाउ होगा क्या? बिल्कुल नहीं अलाउ होगा. तो वो तो ऐड ही करना पड़ेगा. सो परचेज ऑफ लैंड not allowable, 2 lakhs. Then comes expenditure for training, for expenditure on training for skill development, 2,50,000. skill development again कितना allowable होता है? 150%. correct. So third one यहाँ पे allowable expenditure skill development
कितना अलावेबल होगा 150% ऑफ 2,50,000 दैट इज हाउ मच 3,75,000 अकाउंटेंट तुमने कितना डेबिट किया 250 और कितना डेबिट करना चाहिए और एडिशनल 125 तो डेबिट करना मतलब प्रॉफिट में से लेस करना सो दैट इज 1,25,000 बराबर है क्या Expenditure incurred on advertisement in souvenir published by political party. Is it allowable? No. Then you should write a note that you can try and claim deduction under 80GG C यहाँ पे B. हाँ, Isaac Limited है, company है, तो 80GG B. Correct. So third one write down advertisement expenditure on advertisement. Souvenir published by political party. कर दो एडलेस करके क्या आ रहा है आपका TGBP कितना आया ये कितना आया चेक करो जल्दी $20,00,000 10,890 what note are you going to write एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को आप क्या क्लेम कर सकते हो कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGB why don't this is advertisement to a political party right so we can claim a deduction clear to everybody sure little theory part that is remaining I'll do that we will quickly हम लोग conceptual questions और MCQ इतना करेंगे तो फिर फिनिश हो जाएगा PGPP अच्छे से विचार काय किस में रे कौन सा 75 ऐड किया ना मैंने डिसअलावेबल है तो मैंने ऐड किया और बाद में तो डिडक्शन क्लेम कर सकता है देखो तो कितना आ रहा है फिर 1525 ये ऐड 3 है लेस 3 थिंग्स एंड देन इट इज कमिंग टू 20,10,890 आइजैक लिमिटेड बराबर है डन है हाँ I'll go ahead now pay attention to a little bit of concept wala part you should all understand students you know for depreciation what should be taken as the cost now you could get like multiple choice या question में आ सकता है ना ध्यान से सुनना what if you know students you get subsidy you get subsidy let me see if it's there in the notes that I have got just check नहीं है ठीक है कोई बात नहीं ओके लिसन नाउ पे अटेंशन इफ आई गेट अ सब्सिडी फॉर फिक्स्ड असेट what will you do while determining its cost of fixed assets क्या पकड़ेंगे while calculating depreciation like you get a subsidy means the actual cost of plant and machinery is 2 lakhs actual cost of plant and machinery is how much 2 lakhs out of this 2 lakhs गवर्नमेंट गिव यू अ सब्सिडी ऑफ 50,000 तो आपने पहले 2 लाख का खर्चा किया टोटल मशीनरी 2 लाख की है गवर्नमेंट ने बाद में आपको रीइंबर्स किया आपको सब्सिडी दी ऑफ 50,000
Why? Because government has given subsidy for certain kind of machineries, or you come in some scheme of the government, you get a subsidy. What will be your treatment of this subsidy? So you received subsidy of 50,000. Now when I calculate depreciation, what should I take as the cost of plant and machinery? 1,50,000. Perfect. Cost of plant and machinery will be 1,50,000. There is a specific section, 43 section here, which tells us what should be the cost of fixed assets. So I have discussed it. अगर किसी को अपने notes अगर आपने carry किए होंगे तो पेज 161 देख लेना, blank है वो, हमने वहाँ table बनाया है. So I am referring to that table. हाँ, 161 पेज पे है क्या? रफली वो होना चाहिए अपना blank पेज जो हमने यूज किया है. So I have given it to you in the notes itself. Now this is what I'm discussing. Now this becomes important because multiple choices there, so you need to know this, right? Now if you get a subsidy, the subsidy cost has to be, बनाया है ना टेबल, दिख रहा है, मिला ना सबको? हाँ, तो subsidy cost has to be reduced from your cost of asset. So you should reduce the subsidy cost. Okay, so your cost of plant and machinery for the purpose of income tax purpose will become 1,50,000. ये एक. दूसरा, अगर आपने पेमेंट करते वक्त 10,000 के ऊपर का पेमेंट किया है, पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000, and you make this payment or in excess of 10,000 by cash, then will I consider that as a cost? No. We've done, I think कल परसों एक questions भी किया है जहाँ पे फिर हमने वो cost, अगर आपने cash में payment किया है तो we reduce that amount and we do not consider it for the purpose of calculation of depreciation. Correct? Third, this is an amendment that has come. Inventory, you know na, inventory getting converted into a capital asset. On conversion क्या होगा? On conversion FMV will be your business income. हाँ, अगर आपने आपका ही कंस्ट्रक्ट किया हुआ जो स्टॉक इन ट्रेड में शॉप था, आपकी ऑफिस के लिए यूज किया, अभी ये जो ऑफिस है, हाँ, ये जो ऑफिस आपने खुद के बिजनेस के लिए यूज करना चालू किया, कैन यू क्लेम डेप्रिसिएशन? यस. For claiming depreciation, what will be the cost of this asset? Cost of the asset is equal to FMV. So inventory gets converted and then you want to claim depreciation. Then what is the cost of that? The cost will be the FMV as on the date of conversion. The same FMV that was treated as your business income. Okay. Building. Now ये बहुत important है, हमने इसके ऊपर अलग प्रॉब्लम भी किया हुआ है. Now a building is used for personal use and later on it was introduced in business. Immovable asset. Immovable asset अगर है, property है, it was used personal use के लिए and then it was introduced into business. When you do so, you will have to introduce in the business at WDV. Notional depreciation will have to be calculated. Yes. And हमने पता है कौन सा एग्जाम्पल किया है, ये प्रोविजन अदर असेट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है. जैसे वी डिड अ क्वेश्चन वेदर इज अ कार, हाँ, उसने कार अभी भी इस रिविजन बैच में भी वो है दैट अ कार इज देयर एंड दैट कार हैज बीन परचेज फॉर 5,25,000 एंड देन आफ्टर 2 years और सम डेज यू इंट्रोड्यूस इट इन बिजनेस के लिए यूज करते हो, देन इन द बुक्स दैट कार विल बी इंट्रोड्यूस्ड एट 5,25,000 एंड दिस सेम क्वेश्चन इज देयर इन द मॉड्यूल ऑल्सो. बराबर. तो अगर कार है, अदर असेट्स है, इमूवेबल है, तो आपको इधर नोशनल डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा एंड देन you will have to introduce at what price? Introduce it at WDV. But if it is, ये ऊपर के लिए FMV है, and if it is other assets, 4A इसको बोल देते हैं, तो दोनों सेम ही है. If other assets are there which are first used for personal purpose and then introduced in the business, then when you introduce it in the business, please understand, when you introduce it in the business, it has to be for original, the cost only. No notional depreciation will be calculated. Is that clear? So what is going to be the cost of your assets in certain cases, right? Then scientific research वाला भी मैंने करवाया था आपको कि scientific research आपने किया, रिसर्च कंप्लीट होने के बाद आपने उसको बिजनेस में असेट को यूज किया, तो इट विल बी इंट्रोड्यूस एट व्हाट प्राइस? द कॉस्ट ऑफ दैट असेट विल बी टेकन एज नील, 0 वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा. ये करेक्ट है. आगे, इफ सब्सिडीज रिसीव हो गया, इफ असेसी सेल्स अ कैपिटल असेट एट WDV एंड री acquires it by paying some consideration. Okay, now listen, people do this.
Now what is happening? Mr. X sold plant and machinery. Sorry. Listen, while selling, I sell it at WDV. Huh? So I sell the plant and machinery at WDV. Say its WDV was 12 lakhs. But while buying it, I buy it for 20 lakhs. Why I must have done that? To claim higher depreciation. I will say, look, आज बुक्स में क्या वैल्यू है इसकी? 12 लाख. I'll sell it at 12 लाख. 12 लाख की चीज 12 लाख में बेची, कोई गेन नहीं, कुछ नहीं. But I'll buy it from you after 6 months, and that time I'll buy it at 20 lakhs. Actually, your cost is how much? 20 lakhs. But we'll not consider 20 lakhs for your WDV or depreciation calculation. Here it is your WDV or the price that you have paid, whichever is lower. AO, assessing officer, has been given a right to treat it like this. Because you're doing it very clearly with the intention of claiming high depreciation. अपने पास जो asset है वो बेचो. ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस है. I've covered the important ones, the ones that are covered in module. इस तरह के बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं जहां पे टैक्स की चोरी पकड़ने के लिए ऐसे प्रोविजंस बनाए जाते हैं. बराबर है क्या? ठीक है. सो हियर X sold the plant and machinery at WDV which is 12 lakhs, reacquired it at 20 lakhs. 20 लाख में खरीदा. अब उसको लग रहा है, वो बहुत खुश है कि 20 लाख पे डेप्रिसिएशन मिलने वाला है. Tell him sorry, it's not going to happen. You are going to be able to claim depreciation only on 12 lakhs. समझ में आ रहा है? हाँ. So what will be the cost of plant and machinery? It will be 12 lakhs or 20 lakhs, whichever is lower, and that is going to be 12 lakhs. तो जैसे कि जैसे 12 लाख से ही स्टार्ट करना पड़ेगा आगे. तुम्हें लग रहा है बीच में 20 लाख का तुम्हें बेनिफिट मिल जाएगा, तो सॉरी, वो बेनिफिट तुमको नहीं मिलेगा. डन है क्या? पक्का? हाँ. एक और चीज नाउ. ठीक है, ये था. Okay. Do you know electricity generating assets can, electricity generating companies have a benefit of claim, they have an option of claiming depreciation either at WDV or SLM. Now listen carefully. In income tax only understands WDV. हाँ, तुमने अकाउंट्स में अलग अलग मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन सीखे, कोई उसमें अपने को यहाँ पे यूज नहीं है उसका. ठीक है. तो इनकम टैक्स क्या बोलता है? वी अंडरस्टैंड ओनली WDV. We understand only block of assets. We understand a group, and we have given you the rate. At that rate, calculate साल आधा या पूरा depreciation. ऐसा. Only electricity generating companies have an option to choose depreciation either at SLM or WDV. To choose depreciation at SLM or WDV. Sometimes SLM becomes better for them. जल्दी जल्दी उनके यहाँ मशीनरी बहुत ज्यादा रहता है, तो जल्दी जल्दी वो क्लेम कर सकते हैं. सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज हैव एन ऑप्शन ऑफ क्लेमिंग डेप्रिसिएशन ऑन SLM और WDV. इन्हीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज को एक और बेनिफिट दिया है. नाउ व्हाट इज दैट बेनिफिट? लिसन. ओके, तो मैंने क्या सिखाया आपको? इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज अच्छा, दे कांट कीप ऑन चेंजिंग द ऑप्शन एवरी ईयर. एक ही बार बिगनिंग में फर्स्ट टाइम डेप्रिसिएशन क्लेम करते वक्त ही चूज करना है आइदर SLM और WDV. स्टूडेंट्स, SLM या WDV दोनों के रेट्स अलग अलग है, इनकम टैक्स में दिए गए. नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज प्रीफर SLM. स्ट्रेट लाइन ना 10 साल में ही हो जाता है. अगर 10% भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पकड़ा तो ओवर 10 years स्ट्रेट यू गेट इट. एंड WDV रिटन डाउन वैल्यू पर निकालोगे, इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम. एंड SLM के रेट्स आल्सो गुड, सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज गो बाय SLM मोस्टली. ओके. Okay, so you have SLM or you have WDV. दोनों में से you have to choose which, sorry, SLM or WDV, you choose that. Once you choose this now between SLM or WDV, after that there's a provision. जो भी आपने SLM suppose choose कर लिया होगा,
WDV किया तो ये जो मैं बता रही हूँ नहीं है, अभी जो मैं आपको प्रोविजन बता रही हूँ इट इज यू चूज SLM। आपने SLM चूज किया तो जो भी आपका मशीनरी का कॉस्ट होगा, ओके 1 लाख, सपोज आपने उसके ऊपर डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया 10,000, तो आपको WDV आपका कितना आ गया 90,000। ना ऐसे नेक्स्ट ईयर हो गया, नेक्स्ट ईयर वापस आपने डेप्रीसिएशन 10,000 क्लेम कर दिया, SLM है ना, तो वी कैलकुलेटेड एट द कॉस्ट and then I will claim again, here my WDV for the next year becomes 80,000, तो कितना WDV हो जाता है 80,000, करेक्ट है। Now what happens with this, suppose this 80,000 का asset has been sold, okay 80,000 का asset has been sold, this 80,000 के WDV worth is been sold for 90,000, क्या हुआ यहाँ पे मेरा फायदा हुआ ना, 80,000 का असेट मैंने कितने में बेचा 90। ओनली फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज बैलेंसिंग चार्ज। ये 10,000 बिजनेस इनकम ट्रीट किया जाता है। क्या ट्रीट किया जाता है, दिस 10,000 विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम अंडर व्हाट कंसेप्ट, दिस इज बिजनेस इनकम, इट इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग चार्ज and it is business income under section 41. But suppose ये 80,000 WDV I sold it for 72,000, तो what happened, 8,000 का मेरा लॉस हुआ, we call it as business loss and it is called as terminal depreciation, मतलब last depreciation, asset बेच दिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, terminal depreciation. Now I didn't maybe teach you that time at business and profession point because that time you still didn't know capital gains. So you didn't know कि अच्छा यहाँ पे asset बेचने पे capital gain arise होता है और business income नहीं होता है। बाकी असेट्स के लिए अभी भी कैपिटल गेन्स ही होने वाला है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग असेट्स के लिए क्या अराइज हो सकता है, बिजनेस इनकम या बिजनेस इनकम या बिजनेस लॉस एक्सपेंडिचर। बिजनेस लॉस मतलब इट इज कॉल्ड एज टर्मिनल डेप्रिसिएशन, लास्ट डेप्रिसिएशन, दिस हैपेंस व्हेन यू सेल द असेट। दिस कंसेप्ट ऑफ बैलेंसिंग चार्ज और टर्मिनल डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल, बैलेंसिंग चार्ज और टर्मिनल डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल व्हेन फर्स्ट ईयर में ये असेट नहीं बेचा होगा, तो मतलब अगर फर्स्ट ईयर में अपने एसेट खरीदा और उसी ईयर में बेच दिया तो फिर टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बिजनेस लॉस या बिजनेस इनकम नहीं आएगा। तो फर्स्ट ईयर को छोड़ के आपने आगे कभी भी बेचा, देन यू हैव अ कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ज। कट इट शॉर्ट, कम टू अ समरी, सिंपल थिंग। Is this provision that I taught you of balancing charge and terminal depreciation applicable for all assessees? No, it is applicable to electricity generating company. Normally electricity, what is so special about electricity generating companies, they have an option of choosing between SLM and WDV. So they have an option of choosing between SLM and WDV. Now if they have chosen SLM, then what happens, SLM अगर choose किया रहेगा तो जो भी है उनका जो WDV आ रहा है at the end, उससे अगर ज्यादा, जैसे मैंने बोला 80,000 का asset आपने 90 में बेचा तो 10,000 को क्या बोलते हैं हम लोग, बैलेंसिंग चार्ज। एंड व्हाट हैपेंस लाइक WDV इज 80 बट यू सोल्ड इट फॉर 72,000, सो यू मेड अ लॉस ऑफ 8,000, तुरंत उसको कैपिटल लॉस नहीं ट्रीट करते, दैट 8,000 इज कॉल्ड एज टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड इट इज ट्रीटेड एज अ अलाउेबल बिजनेस एक्सपेंडिचर। इसके ऊपर एक MCQ भी है, MCQ बुक में भी है, मॉड्यूल के इसमें भी MCQ है, सो वील रीड इट, दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड इट। समझ में आया, टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ज। बैलेंसिंग चार्ज इज इनकम, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज अ खर्चा, टर्मिनल का मतलब क्या होता है, लास्ट डेप्रिसिएशन, लास्ट क्यों है, क्योंकि बेच दिया से, इसलिए टर्मिनल डेप्रिसिएशन। समझा क्या, सबको समझा? तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ज, ठीक है, डन। So इतना ये कवर करना था। I'll do quickly do conceptual questions. Some conceptual questions may be repetitive, so we'll be a little quick while doing it. But some are important. जैसे मॉड्यूल के कुछ questions हैं जो मैंने आपके साथ क्लास में किए हुए हैं, but हम वापस पूरे अच्छे से conceptual questions करेंगे, MCQ करेंगे, तो at least then we are thoroughly done with this chapter. Okay? So let's quickly open our conceptual questions. कितने हैं? 50? अगर आपके पास सेल्फ इवैल्यूएशन बुक होगा तो, अगर नहीं किया होगा तो उधर ही कर दो। अंडरस्टैंड?
Donation of, come on, let's be quick. Donation for scientific research to an approved institute, 35,000. Research is not related to the business. So what? क्या होगा? What is be the allowable expenditure? Yes. So amount निकालो जल्दी से. Allowable expenditure is 150%, equal to how much? 52,500. Under which section? 35. When you give donation to outside, even if it is not related, it's allowable. When you do research, it has to be related to the business. समझ में आ रहा है क्या? Second one. Assessee carries out research relating to business. He purchases a plant and machinery for 88,000. He also purchases material required for his research, 24,500. He also purchases land for worth 1 lakh. So what is the allowable expenditure? चलो तुरंत. Machinery, is capital expenditure allowed? Yes. Is material price allowed? Yes, 24,500. Is land allowed? No. So totally this is equal to 1,12,500. अलग अलग अमाउंट्स क्यों बता रहे हो सब लोग? 150% कहाँ आएगा? सेल्फ है ना, इसको थोड़ी 150. डोनेशन दिया तो 150% आएगा. इन हाउस है तो 150% आएगा. नहीं तो यहाँ पे थोड़ी आने वाला है. इन हाउस और इसके लिए आने वाला है ना. डू यू अंडरस्टैंड? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दैट? यस. सो इट इज ओनली फॉर ओन बिजनेस के लिए है तो जितना 100% इज अलाउेबल. करेक्ट. After that, assume in the above case research is not related to the business of the assessee, is not related to the business, then allowable expenditure will be 0. When you carry out research on your own, it should be related to your business. So allowable expenditure will be 0. Because it is not related to your business, allowable expenditure कितना हो जाएगा? 0. What is the rate of additional depreciation? 20% of the cost of the plant and machinery and 35% in case of 4 states. Notified areas of 4 states. Then, X Limited carries out in-house research. It is approved by the prescribed authority. Rupees 30,000 on plant and machinery and 12,000 on material. Rupees 1 lakh is the cost of land and 2 lakhs is cost of building. Now, what is this? Is this in-house research? Yes. So come on, calculate in-house research. Assessee is a company, in-house research words है तो उसके provisions use होंगे. $150% of 30,000 plus 150% of 12,000 plus cost of land 0 and building 2 lakhs, 100%. Oops. 2,63,000. डन. आज ही जहां पे अगर आप मिस्टेक कर रहे हो मार्किंग कर देना. एग्जाम के एक दिन पहले सिर्फ वही देखना है. पूरे कंसेप्चुअल क्वेश्चन वापस सॉल्व नहीं करने. ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स मिला के एक बड़ा प्रॉब्लम बनता है आपका. बराबर. हाँ, आगे. डोनेशन टू अ कंपनी रजिस्टर्ड. व्हाट इज द अलाउेबल एक्सपेंस? साइंटिफिक रिसर्च के लिए परसेंटेज क्या है? 100%. 100% मतलब यहाँ पे कितना आएगा? 25,000. X Limited incurred expenses on incorporation of a company. What is this? This is allowable under section. ऊपर का पहले कंप्लीट करती हूँ. Under section 35. Now, allow preliminary expenses. Incorporation expense are preliminary expense allowed to be written off over 5 years. तो allowable expenditure कितना होने वाला है? 8,000. How did we get 8,000? 40,000 divided by 5 years. You know students, what happens is एग्जाम में क्या दिया जाएगा? अकाउंट. हमेशा 3 स्टेप्स में वर्किंग करना है. पहला, इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है. फिर अकाउंटेंट ने क्या ट्रीटमेंट दिया. अकाउंटेंट ने पूरा 40 डेबिट कर दिया. लिसन, पूरा 40 डेबिट कर दिया तो 32 ज्यादा डेबिट कर दिया तो एड 32. नीचे एक नोट दे दिया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 40,000, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस. अकाउंटेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड द सेम इन P&L. देन यू हैव टू रिकॉर्ड द खर्चा, मतलब माइनस करना पड़ेगा. तो आप एड और लेस लर्न करके मत जाना. एक ही एडजस्टमेंट थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया तो चेंज हो जाता है. तो 3 स्टेप्स. पहले इनकम टैक्स क्या बोलता है,
दूसरा, अकाउंटेंट ने क्या इफेक्ट दिया, अगर सही दिया तो नो रेक्टिफिकेशन, सही नहीं दिया है तो अब आप रेक्टिफाई करो. इन दीज 3 स्टेप्स इज व्हाट यू हैव टू सॉल्व इट. समझ में आ रहा है क्या सबको? हाँ, अकाउंटेंट ने क्या किया, फिर इनकम टैक्स का प्रोविजन क्या है, फिर सेकंड अकाउंटेंट ने क्या किया, और थर्ड अब आपको क्या रेक्टिफिकेशन करना है. ठीक है. सेम 5 years. Yeah, sole proprietor also. This is applicable for everybody. Yes. Preliminary expenses are applicable for everybody. सिर्फ कंपनी को लिमिट अलग है, 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह आता है वहां पे. नाउ ABC Limited paid insurance premium on health of employees 18,000 in total, out of which 12,000 was paid in cash. Allowable expenditure कितना होगा? 6,000. बिकॉज स्टाफ के लिए अगर आपने प्रीमियम इसमें कैश में पे किया तो इट इज नॉट अलावेबल. ABC Limited collected 34,000 as employees contribution to PF. So ABC Limited collected 34,000 as employees contribution to PF, out of which 22,000 was deposited within the due date of the fund and balance after the due date. So what is it? पहले 34,000 will be treated as income. When you collect employees contribution, it will be treated as income. And when you paid within the due date, it is treated as expenditure. तो पहले income का क्या impact आएगा? आप प्लस करोगे. इनकम कितना होगा? यस. तो इनकम इज इक्वल टू 34,000 और खर्चा 22. तो नेट इंपैक्ट, नेट इनकम आ रहा है फिर आपका 12,000. तो 34 you collected is your income. What you paid within the due date is your expenditure. Employees provident fund के लिए कौन सा ड्यू डेट देखा जाता है? ड्यू डेट एम्प्लॉइज, ड्यू डेट ऑफ द फंड. कौन सा ड्यू डेट देखा जाता है? ड्यू डेट ऑफ द फंड. और एम्प्लॉयर के लिए कौन सा ड्यू डेट है? रिटर्न का. रिटर्न का. बराबर है. ABC लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूटेड 34,000 टूवर्ड्स एम्प्लॉइज. ABC लिमिटेड ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, ये एम्प्लॉयर की कॉन्ट्री की है बात हो रही है. द फंड इज रिकॉग्नाइज्ड, देन अलावेबल एक्सपेंडिचर. ऑफ कोर्स प्रोवाइडेड इट इज पेड विद इन due date of 139(1), provided it is paid within the due date under section 139(1). बराबर है. So of course there is another section 43B that talks about it. Assume in the above case that the fund is not recognized, then not allowable. Mr. X has taken a loan from the bank for business and paid interest of 12,000. Allowable. Assume the above loan is for payment of income tax. Is income tax allowable expenditure? No. Loan taken for income tax, interest paid on that, will that be allowable? No. Assume the above loan is for payment of sales tax, GST and customs duty. Allowable? Yes. Indirect taxes के लिए है तो it is allowable expenditure. आगे. Mr. Y, a businessman, paid interest of 7,500 on his own capital. Not allowable. Why? Notional expenses. Firm Star Enterprises pays interest of 12,000 on partners capital account. फर्म के लिए अलावेबल होगा. हाँ, सब्जेक्ट टू 40B. यस, सब्जेक्ट टू 40B क्या बोलता है? 12% के अंदर होना चाहिए. परफेक्ट. सो यू शुड से अलावेबल subject to section 40B. And what is the limit in 40? Sorry, B is small. 40B, and what is the limit? 12%. XYZ Limited has taken a loan for purchase of plant and machinery. It paid 14,600 till the date the machinery was put to use. Till the date the machinery is put to use. Your AS16. AS16 पढ़ा है ना, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. क्वालिफाइंग असेट दिखते हो, फिर क्वालिफाइंग असेट में जो भी इंटरेस्ट है यू हैव टू एड इट इन द कॉस्ट. सो दिस इज गोइंग टू बी कैपिटलाइज्ड. याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? AS16 याद आ रहा है कि इनकम टैक्स का प्रोविजन याद आ रहा है? दोनों सेम ही है वैसे. हाँ, यू नो इनकम टैक्स में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं. हाँ, एंड दे आर कॉल्ड एज ICDS, इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स. प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में आइडियली
यू हैव टू लर्न दैट ICDS, बट आपके सिलेबस से वो निकाल दिया है. तो देर इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इनकम टैक्स, देन देयर इज अ कंपैरिजन कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज, अकाउंटिंग के लिए क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और इनकम के लिए, इनकम के कंप्यूटेशन के लिए ICDS है. समझा क्या? So you have to do a comparison between ICDS and the accounting standards. And SOTI का working happens as per ICDS. Accounting happens as per accounting standards. So there are these different things. A businessman wrote off 13,000 as bad debts in the books of accounts. He also made a provision for bad debts of 5,600. चलो बताओ क्या होगा? Allowable expenditure क्या है? हाँ 13,000. And what about bad provision for bad debts? Not allowable. Provision for bad debts? Not allowable. Expenses on family planning? Allowable only to corporate assessee. याद रखना ये. स्पेलिंग मिस्टेक जाने दो अभी. कैपिटल एक्सपेंसेस ऑन फैमिली प्लानिंग अलावेबल ओवर 5 years. ये भी किसको? लेकिन कॉर्पोरेट असेसी. सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पेड अलावेबल एक्सपेंडिचर. अच्छा, लेकिन यही STT कैपिटल गेन्स में आया तो नॉट अलावेबल. कैपिटल गेन्स का फॉर्मेट होता है ना, सेल कंसिडरेशन लेस इंडेक्स कॉस्ट लेस इंप्रूवमेंट लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर. तो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर में STT नहीं आता है. फ्रिंज बेनिफिट टैक्स नाउ अबॉलिश्ड and it was not allowable also. अभी तो है भी नहीं. Income tax section not allowable. What is the section? 40 small a. Not allowable under section 40 small a. Advance tax not allowable. Same section. Expenses on acquisition of know-how. P&L को डेबिट किया. एक्सपेंसेस ऑन एक्विजिशन ऑफ नो हाउ. कैपिटल एक्सपेंसेस एंड क्लेम डेप्रिसिएशन. नो हाउ इज अ इंटेंजिबल असेट. यू शुड क्लेम डेप्रिसिएशन एट 25%. yes, so this is capital expenses not allowable. तो क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन एट 25%. डन. बराबर. पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड डिविडेंड टैक्स नॉट अलावेबल. करेक्ट. अ कंपनी पेज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. इट्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. शेयर होल्डर्स को आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो उनका शेयर दे रहे हो, ये खर्चा नहीं है. एप्रोप्रिएट कर रहे हो आप प्रॉफिट को. ओके, डिस्ट्रीब्यूटिंग, इट्स नॉट एक्सपेंसेस. पेनल्टी फॉर इवेजन एंड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ नॉट अलावेबल. अच्छा, अगर पेनल्टी है, कॉम्पनसेटरी पेनल्टी है, जैसे रिटर्न लेट हो गया वगैरह, ऐसा एक नोट मॉडल में था, मैंने डिस्कस किया आपके साथ, देन दैट बिकम्स अलावेबल. कॉम्पनसेटरी पेनल्टी है, जैसे लेट फीस वगैरह है, तो वो अलावेबल. पेनल्टी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अलावेबल एक्सपेंडिचर. इफ फर्म, ओके, फर्म का बुक प्रॉफिट और रेम्यूनरेशन निकालो, वर्किंग करो 28 का. बुक प्रॉफिट में कैसे वर्किंग करते हैं? 5,60,000 इज द बुक प्रॉफिट. सो फर्स्ट 3 lakhs कितना है? फर्स्ट 3 lakhs का 90% और 150 विच एवर इज हायर. सो 90% और 150 विच एवर इज हायर. सो व्हाट इज ऑब्वियसली हायर? 270. बैलेंस 260 का 60% निकालो. 126 नहीं, कितना? 156. क्या? 60%. 4,26,000. दिस इज द लिमिट अलावेबल रेम्यूनरेशन. ये लिमिट है अप टू 4,26,000 इज द लिमिट गिवन अंडर 40B. बराबर. एक्चुअल रेम्यूनरेशन कितना है?
3,50,000. Is it within the limit? Yes. So is that going to be allowable? Yes, it is going to be allowable. Then is 350 going to be allowable? Yes. ये जो होता है ना स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं? ये है लिमिट आपका. This is a limit. If you are within the limit, then we don't have any problem. So up to that limit, it is an allowable expenditure. Correct है क्या? हाँ. तो how much is allowable remuneration? 3 दिया है ना? 3 lakhs. 350. So 350 is allowable remuneration. Done क्या? आगे. If firm's book profit is 1,30,000 and remuneration is 1 lakh, 130. So first 1,30,000 पे 1.5 लाख और 90% ऑफ 130, दोनों में से विच एवर इज हायर. क्या हायर होगा? 1,50,000. इसलिए समझा वाई विच एवर इज हायर दिया है. हाँ, आप बोलोगे अरे मैं हमेशा 90% इज गोइंग टू बी हायर. आई नो दैट 90%, 3 lakhs इज गोइंग टू बी हायर, बट बुक प्रॉफिट कैन बी एनीथिंग ना. बुक प्रॉफिट हियर इज जस्ट 130, तो उसका 90% और 1,50,000 विच एवर इज हायर. समझ में आ रहा है क्या सबको? सो हाउ मच रेम्यूनरेशन इज एक्चुअल. एक्चुअली कितना दिया आपने? सो आर यू विद इन द लिमिट? हाँ, इज ये 150. 40B सेक्शन क्या देता है? मैक्सिमम लिमिट फॉर रेम्यूनरेशन. सो व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर रेम्यूनरेशन? 150 एंड एक्चुअली इज 1 lakh. सो व्हाट विल बी अलावेबल? 1 lakh. अलावेबल रेम्यूनरेशन विल बी 1 lakh. देखो किसी को डाउट है क्या? हाँ, आपके सेल्फ इवैल्यूएशन में कर चुके हो क्या आप? ये कुछ ने किया है, कुछ ने नहीं किया ना. ठीक है. 29 डन. 30. If firm's book profit is 2,20,000 and remuneration is 2 lakh, ए बुक प्रॉफिट बाय द वे कैसे निकालते हैं? हाउ डू यू कैलकुलेट बुक प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल, एड लेस ऑल एडजस्टमेंट जो करते हो वो करने का, सारी एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट का भी एडजस्टमेंट कर देने का, और जितना रेम्यूनरेशन है पूरा ऐड करो. अरे रेम्यूनरेशन देने के पहले हमको प्रॉफिट तो पता चलने दो, तो जितना डेबिट किया उतना ऐड बैक कर दो और फिर बुक प्रॉफिट निकालो, और उसके बाद फर्स्ट 3 lakhs, नेक्स्ट का 60%, ऐसे वर्किंग करना पड़ेगा. सो बुक प्रॉफिट इज 220. देन ऑन 2,20,000, 150 और 90% of 220. What is higher? 198. So 198 is the limit. Maximum this much remuneration is allowed to be given to working partners as per the Income Tax Act. और actual remuneration कितना है? Oh, तो allowable कितना होगा? Did you cross the limit? Yes. So income tax will say sorry. Allowable remuneration is equal to 1,98,000. बराबर है क्या? समझ में आ रहा है सबको? Are you all understanding this? Okay. Construction of school building डन है ना सबका? किसी को नोट करना है क्या ये? 28, 29 and 30. Okay, coming back. Construction of school building in compliance with CSR activities amounting to 5,60,000. Is CSR activities allowable? No. What is the full form of CSR activities? Corporate Social Responsibility. New Companies Act 2013 requires you to have some percentage of your profit towards the social responsibility, 2% of the profit. But आपने suppose ये 2% खर्चा कर दिया जो 5,60,000 आ रहा है, क्या इनकम टैक्स इसको अलावेबल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेगा? नो, नॉट अलावेबल एक्सपेंडिचर. राइट? Purchase of building for setting up a warehousing facility for storage of food grains amounting to 4,50,000. No, it is a capital expenditure, but in this case it's allowable because it's a specified business. 35 AD वाला business है. Warehousing of agri produce, warehousing of sugar. This is and 35 AD वाला business है. तो this expenditure is allowable. हाँ, it is allowable. Capital expenditure ना.
allowable expenditure under section 35 AD. Allowable expenditure under section 35 AD. इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, ये पक्का समझा ना ये आपको? हाँ, अच्छा ये स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स नहीं होता, जस्ट एनी जनरल बिजनेस तो कैपिटलाइज करते एंड देन यू वुड हैव क्लेम डेप्रिसिएशन एट 10% बिल्डिंग पे. इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू एक्स रेसिडेंट 50,000 ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड. So there will be disallowable expenditure. कितना? 15,000 ना? How did I get that? 30% of the 50,000. 30% of 50,000. 40 small है. Payments without TDS और TDS not paid. इधर सुनो, TDS के लिए भी टाइम लिमिट क्या है पेमेंट का? रिटर्न की ड्यू डेट. एम्प्लॉयर की कंट्री के लिए पेमेंट का ड्यू डेट क्या है? रिटर्न की ड्यू डेट. सिर्फ किसके कंट्री के लिए? एम्प्लॉई. मंथ टू मंथ फंड की ड्यू डेट होती है ना, वो होता है. एम्प्लॉय के पैसे है, फंड के ड्यू डेट में डालना ही पड़ेगा. रिटर्न तक कौन रुकेगा? उसका इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है. लॉजिक समझो. एम्प्लॉय के लिए मंथ टू मंथ फंड की ड्यू डेट, एम्प्लॉयर के लिए टीडीएस के लिए 43B के लिए कब तक पेमेंट कर सकते हो? 139(1) रिटर्न वाला ड्यू डेट. सेल्स टैक्स ऑफ एक्स लिमिटेड 50,000 was outstanding on 31/3/2019 was paid on 8th May 2019. Allowable or not allowable? Allowable expenditure, fully allowable, no disallowance. 50,000 will become allowable. What is the reason it is allowable? Paid within due date. कैसे पता चला ड्यू डेट? कंपनी एक्स लिमिटेड ड्यू डेट क्या है? 30th September और आपने 8 मई को पे कर दिया, तो इट इज अलावेबल एक्सपेंडिचर. दिस इज एन अलावेबल एक्सपेंडिचर. बोनस टू एम्प्लॉई for the year was 60,000 was paid as follows. 15 जुलाई को 2018 को 25, फिर 25 और दिसंबर 10,000. ड्यू डेट 30th September है, तो क्या होगा? 25,000 अलावेबल, ये 25,000 अलावेबल. दिसंबर वाला नॉट अलावेबल बिकॉज ड्यू डेट क्या है? 30th September. ये सेक्शन कौन सा है? 43B. सेक्शन कौन सा है? 43B. पे विद इन द ड्यू डेट. यू हैव टू पे विद इन द ड्यू डेट. समझ में आ रहा है क्या सबको? पक्का? हाँ. पेमेंट ऑफ 87,000. ओहो, ये दिया वापस. ओके. पेमेंट ऑफ 87,000 फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वाज डन एज फॉलोज. 80,000 बाय अकाउंट पे चेक, अलावेबल. हाँ. 25,000 नॉट अलावेबल. 32 बाय क्रॉस चेक, नॉट अलाउड. कौन से चेक से होना चाहिए? अकाउंट पे ई चेक, बराबर. या ईसीएस या ये मोड में भी अलाउ हो सकता है. कमेंट ऑन द अलावेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग. Mr. Achala hotelier claimed expenditure on replacement of linen and carpets in the hotel as revenue expenditure. तो is it allowable? Yes. होटल इंडस्ट्री बार बार चेंज करना पड़ता है कारपेट्स, कर्टन. सो यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस ध्यान में रखो और फिर देखो वो खर्चा अलावेबल है या नॉट अलावेबल. बराबर है. सो इज दिस एन अलावेबल एक्सपेंडिचर? यस. होटल इंडस्ट्री दे हैव टू कीप द रेस्टोरेंट हैज टू बी वेरी प्रॉपर, ओनली देन द कस्टमर्स आर गोना गेट इन. ओके. Interest on loan paid to X, a non-resident, 50,000 on which TDS has not been deducted. How much will be disallowable? 50,000 entirely disallowable. This is under section 40A. How much is the disallowance? 100%. 100% of the expenditure will be disallowed. Demerger expenses. Okay, this is not in your syllabus. Section है अमालगमेशन और डीमर्जर पे जो खर्चा होता है ना, अमालगमेशन करने पे इट इज अलाउड टू बी रिटन ऑफ ओवर 5 years. बट ये आपके सिलेबस में ये सेक्शन डिलीट किया है, एक्ट में है. हाँ. 41 पढ़ो. फ्यू मोर टू गो, दैट्स इट. कम ऑन.
क्या है आपका आंसर? अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉइज टूवर्ड्स, नो सॉरी नॉट दिस, 41। तो क्या होगा 41 में? पेंशन स्कीम 80 CCD में एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 30 lakhs। एंड व्हाट इज द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी? 7 lakhs। एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से एम्प्लॉय के पेंशन फंड में पैसे डाले, तो इज इट एन अलाउेबल एक्सपेंडिचर? यस, इट इज अलाउेबल प्रोवाइडेड इट इज अप टू 10% ऑफ द, provided it is up to 10% of the salary। तो यहाँ पे what is about 10%? 7 lakhs। तो that 7 lakhs will be disallowable। तो ये जो 7 lakhs है ये allowable expenditure नहीं है। मैक्सिमम एम्प्लॉयर कैन कॉन्ट्रीब्यूट इज अप टू 10% ऑफ सैलरी। एम्प्लॉयर के अपनी जेब से पैसे निकाल के दे रहा है, ये खर्चा है उसका। फिर वो इनकम टैक्स को पूछता है अलावेबल है क्या? इनकम टैक्स बोलते हैं हाँ अलावेबल है, बट लिमिट है। कितना लिमिट है? 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, आगे रीड 42। $7 lakh allowable। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉइज टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, अमाउंट रिकवर्ड 12 lakhs। तो पहले 12 lakhs क्या होगा? इनकम, out of which remitted, okay, and how much was remitted within the due date? End of the year 7। oh, and balance was remitted before the due date of the return। नहीं, फिर we assume that ये जो 7 lakhs आपने remit किया, this is allowable, it is remitted within the due date of the fund। तो पहले 12 लाख इनकम, फिर 7 लाख खर्चा, तो नेट इनकम 5 लाख। करेक्ट, समझा क्या 42? हाँ, तो 42 में क्या होगा? पहले 12 lakhs विल बी इनकम, क्यों? कलेक्टेड। फिर एक्सपेंडिचर कितना होगा? अच्छा, what up, but is the question clear? No, but this is the way the question is in the module, so I have taken it just the same way। So this is how ICMA frame it, so we can't help it। So you will have to understand कि 7 lakh is remitted during the year, we are going to assume it is remitted within the due date of the fund। और बचा हुआ जो है 5 लाख, तो वो ड्यू डेट के बाद हुआ है रेमिट, तो दिस इज वी आर गोइंग टू ट्रीट इट एज डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर। तो नेट ये इनकम बन जाता है स्टूडेंट्स। जब ये इनकम बन जाता है मतलब इन शॉर्ट इनडायरेक्टली आपने 5 लाख क्या करना है? एड बैक करना है। दोनों इंपैक्ट नहीं दे तो भी चलता है, अगर एग्जाम में प्रॉब्लम आया डायरेक्टली से 5 लाख ऐड किया तो भी चलेगा, और ये इनकम भी ट्रीट करना है। नहीं, इनकम ट्रीट करने के बाद वाला नेट इंपैक्ट है 5 लाख इज योर इनकम, एडिशनल 5 लाख पे कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा, एड बैक होगा वो। समझ में आ रहा है क्या सबको? आगे 42 के बाद टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स, टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स टू द प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉइज बोर्न बाय द एम्प्लॉयर 4,50,000। company employer paid tax on non-monetary perquisites given to the employees, is it allowable expenditure or disallowable? Disallowable। it is disallowable expenditure under which section? 40 small a। yes, so it's a disallowable expenditure under section 40 small a। बराबर है? come on, next, how many more? yeah, okay, capital gain। now listen, capital gain, not capital gain, sorry, gain due to change in the rate of exchange of foreign currency 1 lakh related to import of machinery। the machinery was acquired 2 years ago and put to regular use since then। now did you make a gain due to foreign currency fluctuation? आपने जब बिल रिकॉर्ड किया रहेगा डॉलर्स में, you must have said कि डॉलर्स में 10 लाख डॉलर देने का है, but rupee maybe became strong and then you ended up giving only 9 लाख। तो आपका 1 लाख का अपने बुक्स में दिख रहा है कि आपको 10 lakhs पे करना है, बट यू पे हाउ मच? ओनली 9 lakhs। तो आपका 1 लाख का फायदा हुआ। दैट फायदा ऑफ 1 lakh हैज टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड देन यू शुड क्लेम डेप्रिसिएशन। ये भी सारे ये जो है ये आपके मॉड्यूल के ही क्वेश्चंस है। तो 1 lakh ट्रू और फॉल्स या ऐसे दिए हुए एडजस्टमेंट है, तो आई हैव ट्राइड, आई हैव कवर्ड इट ऑल। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस 1 lakh, you can note it down, 1 lakh will be reduced from the cost of plant and machinery। 1 lakh will be reduced from the cost of plant and machinery while claiming depreciation। अभी 46 आंसर बिना देख के, आई डोंट नो लिखा हुआ है आपके यहाँ,
आप बता सकते हो तो बताओ, इसके ऊपर बहुत डिस्कशन किया था एक बार, तब अब कर देख लेते हैं एक बार। इनकम में ऐड हो जाएगा, करेक्ट। हाँ, अभी लोग क्या करते हैं सुनो, मैंने ईयर 1 में दिस इज गोइंग टू बी एडेड इन योर इनकम। आपने पेमेंट कैसे किया है ये 25,000 का? क्रॉस चेक से नहीं, हाँ क्रॉस चेक से किया। नो लिसन, सी ये भी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, सुनो। ईयर 1 में आपने 25,000 का प्रोविजन किया। कितने अमाउंट का प्रोविजन किया? 25,000। पेमेंट किया क्या? प्रोविजन किया। प्रोविजन किया मतलब हाँ, सैलरी, सपोज सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल, है ना? पेमेंट किया क्या? नहीं। तो अकाउंटेंट को, इनकम टैक्स ऑफिसर को चांस ही नहीं मिला देखने का कि तुम पेमेंट कैसे कर रहे हो, कैश से कर रहे हो, चेक से कर रहे हो, 20,000 के ऊपर है। अभी आप क्या करते हो, ईयर 2 में आप बोलते जाने दो, अभी किसको पता चलेगा, खर्चा तो लास्ट ईयर में क्लेम कर दिया। अभी इस 25,000 का पेमेंट हम कैश से कर देते। 25,000 का पेमेंट हम कैसे कर देंगे? कैश से या क्रॉस चेक से। सो नेक्स्ट ईयर यू मेक पेमेंट and you do not follow the rules of 48(3). So next year when you make the payment and you do not follow the rules of 48(3), 25,000 जैसे आपने अगर क्रॉस चेक से पे कर दिया तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस बिकम्स अ disallowable expenditure. In short, technically it's a disallowable expenditure, but technically I can't say disallowable expenditure क्योंकि खर्चा पीएनएल को आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसका प्रोविजन बना था। तो इस साल जब आप पेमेंट करते हो तो एंट्री क्या पास करते हो? सी हियर यू हैव डन द एंट्री सैलरी टू सैलरी पेएबल। नेक्स्ट ईयर व्हेन यू मेक द पेमेंट यू से सैलरी पेएबल टू बैंक। तो टेक्निकली इट्स नॉट अ खर्चा दिस ईयर, सो यू कांट से इट्स डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर। फॉर अस इट इज डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर। इन शॉर्ट इट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज योर इनकम। डिसअलावेबल खर्चा मतलब तुम ऐड ही करते हो, ऐड किया मतलब इनकम ही हो जाता है। इन शॉर्ट हमको उस पर टैक्स चाहिए। समझा क्या? पक्का? सो आइदर डायरेक्टली सैलरी टू कैश किया रहता तो डिसअलावेबल, प्रोविजन किया, नेक्स्ट ईयर पेमेंट किया, फिर भी पनिशमेंट। हम 48(3) पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तुम कैश में पेमेंट करो, चेक से करो, वो ईयर ऑन ईयर इट्स गोइंग टू कीप फॉलोइंग यू। प्रोविजन आज किया, इट्स गोइंग टू वेट 2 years के बाद इट्स गोइंग टू कम एंड आस्क यू हाउ डिड यू मेक द पेमेंट ऑफ दिस प्रोविजन, वाज इट बाय कैश? यस, डिसअलाउ दैट एक्सपेंडिचर। समझा क्या? जिस ईयर पेमेंट किया उस ईयर डिसअलाउ हो जाएगा। डन है क्या? समझा ना? हाँ। 47. Is it mandatory to claim depreciation? Yes, there's a Supreme Court judgment which simply says it's not your choice कि नहीं इस साल है ना मुझे प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है तो आई डोंट वांट डेप्री। नो, यू डोंट हैव अ चॉइस। देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दैट यू हैव टू क्लेम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का कोई चॉइस नहीं है, एक साल क्लेम करो, एक साल नहीं क्लेम करो, आपकी मर्जी से नहीं चलता है। क्लेमिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी। हाँ, क्यों है? बिकॉज खर्चा है एक्चुअली, आपको क्लेम करना है, नहीं तो आप उसको प्रॉफिट एडजस्टमेंट करोगे। आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो इस साल आपका प्रॉफिट कम हो गया, बाकी का लॉस आ रहा है तो आप नहीं क्लेम करते, और नेक्स्ट ईयर फिर आपको डब्ल्यूडीवी ज्यादा, आपको ज्यादा डेप्रिसिएशन मिलेगा, उस साल आपका खर्चा। ऐसा नहीं, प्रोपोर्शनेटली, करेक्टली यू शुड बाइफिकेट इट। यू विल हैव टू क्लेम डेप्रिसिएशन। मेडिक्लेम प्रीमियम पेड बाय Mediclaim premium paid to GIC by Mr. Lokesh for his employees. Mediclaim premium paid by the employee is a allowable expenditure. Only cash में रहेगा तो disallowable. 35 DDA
VRS का कॉम्पनसेशन क्या होता है? VRS का कॉम्पनसेशन इज अलाउड टू बी रिटन ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. सो 49 का आंसर क्या होगा? इट इज गोना बी अलावेबल एक्सपेंडिचर ओवर 5 years. बराबर है क्या? Provision made on actuarial valuation for payment of gratuity 5 lakhs. However, no payment on account of gratuity was made before the due date of filing the return. Allowed or not allowed? Not allowed. Mere provision of gratuity is not allowed. अरे नहीं तो लोग कुछ भी करेंगे. 10 लाख ग्रेचुटी, चलो टैक्स कितना आ रहा है? अच्छा बहुत ज्यादा आ रहा है, नहीं आई एम नॉट रेडी टू पे, चलो ग्रेचुटी का प्रोविजन करके PNL को डाल दो. नहीं चलेगा. It has to be a fund. You have to pay it. Put money in the fund. Only then it is allowable. So this is not allowable. हो गए कि नहीं? अभी और कितने? Okay. Purchase of oil seeds of 50,000 in cash from a farmer on a banking day. banking day पे लेकिन farmer है. Yes, this is an allowable expenditure. Tax on वापस आ गया. नॉन मॉनिटरी मॉड्यूल में 2 बार कवर्ड है. देखो, टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय 20,000 डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर फॉर द एम्प्लॉयर. दिस इज अंडर सेक्शन 40A. टैक्स पेड ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट इज नॉट एन अलावेबल एक्सपेंडिचर. पेमेंट ऑफ 50,000 बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड फॉर फायर इंश्योरेंस अलावेबल. 50,000 है फिर भी अलावेबल क्या? हाँ, ECS, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGS, ऑल दीज आर अलाउड. सैलरी पेमेंट ऑफ 2 lakhs outside India by a company without deducting tax at source. Yes, 100% disallowable. And do you know this is a permanent disallowable? Yes, disallowable expenditure is equal to 2 lakhs. Payment made in cash rupees 30,000 to a transporter in a day for carriage of goods. Allowable. Why? Yes. Payment to transporter 35 का लिमिट है. डन क्या? ग्रेट. ओपन योर MCQ का अगर बुक लाए हो तो मैं आपके साथ सेक्शन A फिनिश कर रही हूँ. मॉड्यूल के सारे MCQs आई एम सॉल्विंग. एवरी चैप्टर आई एम डूइंग. सो आई विल सॉल्व द फर्स्ट 10 MCQs हियर जो मॉड्यूल में कवर्ड है. तो MCQ बुक में से हम कर रहे हैं सॉल्व. 10 minutes it will take, just 5 to 7 minutes it will take, and then we'll be done. What's the page number? Can you tell me your question number? You know my book MCQ is divided into 2 sections. Section A is for module questions and section B is the additional questions. If you don't get time to solve so many amendments वाले स्टार मार्क किए हुए क्वेश्चंस है वो तो पक्का करके ही जाना है आपको. मुझे पेज नंबर बताओ ना जल्दी. 10. Yeah. So 51. Come on, read it. Question number 51 from our MCQ book. We are going to do it now. Assessee uses plant and machinery for purpose of his business. Under section 31, he shall be eligible for deduction on account of what? Both capital and capital खर्चा अलाउ होता है क्या? नहीं. So which? It is only going to be current. And 1/5 वगैरह कुछ होता है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं. Okay. So B is the correct answer. Is that clear? Nothing is happening. Nothing is happening. Okay. So B is the correct answer, right? 52. Read this carefully now. ये अभी सिखाया था मैंने, टर्मिनल और बैलेंस चार्ज. करो 52. This is the only one concept, huh? Otherwise there's nothing else. This was like missed out, no? Electricity charging SLM
120. The WDV at the beginning is 135 and it sold it for 120. तो 15,000 का क्या बोलेंगे? टर्मिनल डेप्रिसिएशन. Yes, so the correct answer is A. नील 2 मिनट रुको. Yes, so the correct answer is terminal depreciation. And इसका correct answer क्या था? B. Read the C. 53. Next one. Mr. X acquires an asset which was previously used for scientific research for 275. The actual cost will be nil. Very good. A Limited has an unabsorbed depreciation of 4,50,000 for PY 18-19. This can be carried forward for maximum. और आगे का देखो ना क्या है. And set off against business income. Set off against any head of income. Set off against any head of income except salary. That's a correct. समझा क्या? C correct होगा but D is a more correct answer. हाँ तो फिर wrong आ जाएगा तुमको. हाँ अच्छे से चूज करके आना. 55. X a retailer acquired furniture on 10th May 2018 for 10,000 in cash and for 15,000 and 20 what 10,000 cash, 15 and 20,000 by bearer check and account pay check. Depreciation allowable will be कितना depreciation आएगा? मेरा नहीं आ रहा है 3,000. मुझे नहीं आ रहा है 3,000. बेरर चेक 15,000 से अलाउड है क्या? नहीं. और 10,000 अलाउड है क्या? हाँ बिकॉज इट इज एग्जैक्टली 10,000. सो वो 10,000 भी अलाउड है और 20,000 भी अलाउड है. टोटल कॉस्ट 30 पे 10%. अच्छा मैंने अगर थोड़ा सा डेट चेंज कर दिया तो उतना अलर्ट रहना. 25 मई की जगह पे 15 मई की जगह पे 15 दिसंबर कर दिया तो हाफ लेना. हाँ सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर सॉल्विंग. यू हैव टू बी अलर्ट इन द एग्जाम. ओके यस. सो करेक्ट आंसर इज 3,000. बराबर क्या? चलो 56. XYZ Limited incurred capital expenditure of 1,50,000 on 1st April 2018 for acquisition. See? हाँ क्या 5 years में नहीं राइट ऑफ होता क्या? नहीं बिल्कुल नहीं. करेक्ट. 44 AE अमेंडमेंट वाला है. इसको पहले अमेंडमेंट स्टार मार्क कर दो. इसको स्टार मार्क करो. अमेंडमेंट है 44 AE इज इंपॉर्टेंट. 3 ही अमेंडमेंट्स हुए ना. ए बिजनेस प्रोफेशन में कितनी अमेंडमेंट्स है? 3. सेक्शन 28 43 CA जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना 5% वाला 105 एंड 44 AE. यस तो रीड करो क्या करेक्ट आंसर देखो. 7,500 1,000 per ton. करेक्ट आंसर क्या है? डी इज अ करेक्ट आंसर. यस सी में लाइट का नहीं दिया है ना और डी इज अ बेटर एंड अ मोर करेक्ट मोर एप्रोप्रिएट आंसर. 58. Where the total turnover of the assessee eligible for presumptive taxation under section 44 AD is received entirely by account pay check. 6%. 59. रफ में करो. इसका वर्किंग है एग्जाम में करना. ऐसे देखते मत कैलसी पे मत करना. सॉल्व करना. बाय चांस कुछ मिस्टेक हो गया तो यू हैव द रेड आंसर विथ यू ना.
क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? I'll calculate 50. नहीं आ रहा है मेरा, कुछ और आ रहा है क्या? आई एम गेटिंग डिफरेंट. व्हाट आर यू ऑल गेटिंग? मेरा ए आ रहा है. मेरा तो ए आ रहा है बाबा. ये देखो, अयो आंसर आया ही नहीं. अरे जो 50,000 है ना, ओपनिंग WDV 320, जो एडिशन है ना 50, इट हैज एन एस्ट्रिक मार्क. पुट टू यूज दिया है ना 1 नवंबर को, इट वॉज पुट टू यूज. परचेज कभी भी होने दो, इट इज गिवन पुट टू यूज. और माइनस कितना किया? 2 लाख का. तो क्लोजिंग WDV क्लोजिंग कितना आया? 170. 170 में से 50,000 पे 7.5% एंड 1,20,000 पे 15%. चेक नाउ. ये 18,000 और ये 3,750. So I am getting 21,750. Why you all got 25,500? Don't do that. Don't take it. ऐसा अरे डेप्रिसिएशन निकालना है, कितना इजी है. Don't take it lightly. ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है जब इजी जो अपने को आता है और उस पर मार्क्स मिस आउट हो गए ना, तो ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है. डोंट लेट दैट हैपन. समझा क्या? हाँ. तो करेक्ट आंसर क्या है? ए. Correct answer is A. And the last one now. Employer's contribution to Provident Fund, Superannuation Fund, Gratuity Fund is allowable as a deduction in computing the income under the head PJBP provided it has been paid before. पक्का क्या? हाँ, अभी कितनी बार डिस्कस किया ये है कि नहीं? ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर 139(1). और इसकी जगह अगर एम्प्लॉइज फंड होता तो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फंड, दैट स्टाफ वेलफेयर फंड. बराबर है. ये जो सारे होते हैं ना, ग्रेच्युटी, PF, ये सारे फंड्स जो होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? सुपर एन्युएशन. ये क्या बोलते हैं? स्टाफ वेलफेयर फंड. इससे किसका फायदा होता है? स्टाफ का. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्टाफ वेलफेयर फंड. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? श्योर? एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? नो? Moving ahead. So done. We are done with profits and gains of business and profession. I'll continue immediately with capital gains. Or you want a break now and then non-stop capital gains? हाँ. Take a break. 2 minutes break. हाँ, 2 minutes break. चलो जल्दी.